Hello and welcome to Hitbullseye. My name is Manish and I'm back with your weekly dose of current affairs. This is the second week of April 2023. So, if you have not followed our channel till now, please follow the channel and hit the bell icon so that you receive the notifications of all the videos as and when we post them. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच आर अ लॉट हैज हैपेंड इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल. So let's get started. Starting with the first one, India, Bangladesh, Japan connectivity meet. It might sound a bit odd because these three countries have come together, India, Bangladesh and Japan, but the agenda of this meeting was to improve connectivity. So this is a new sort of trilateral meeting totally focused on connectivity. So we'll take a look at this. Secondly, Mr. C.R. Rao has won International Prize in Statistics for the year 2023. So Mr. C.R. Rao is a world famous statistician from India, and right now he's teaching in a university in US. He's an Indian American basically, and now he has been selected for the world's highest prize in statistics. तो हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. Prime Minister Narendra Modi has launched Big Cats Alliance. Big Cats Alliance, there are basically 7 types of big cats in the cat family, like tiger, lion, puma, jaguar. So there are 7 different species of big cats, and to protect all of them, Prime Minister Narendra Modi has launched the Big Cats Alliance. The World Vaccine Congress 2023 has taken place. अब से कुछ साल पहले तक हम वैक्सीनेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस शायद नहीं देते थे, बट कोविड के बाद से वैक्सीन कांग्रेस को हमने बहुत इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है. एंड एन इंडियन वैक्सीन कंपनी हैज़ वन एन अवार्ड इन दिस कांग्रेस, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे. नेक्स्ट, इंडिया गिव्स $2 million टू अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया. So in Somalia, there are certain problems that have been persistent for the last many years. So to transit from a war zone into a peace-loving country, there is a African Union transition mission in Somalia, and India has also contributed monetarily to that mission. तो उसके बारे में हम थोड़ा सा discuss करेंगे. World's first Asian King Vulture Conservation and Breeding Center has opened in India. Towards wildlife conservation, India has taken another step, और ये दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर का कंजर्वेशन सेंटर इंडिया में खोला गया है. तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कहाँ पर है एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एशियन किंग वल्चर इन द IUCN रेड लिस्ट. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल योगा महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन असम in anticipation of the International Yoga Day on 21st of June 2023. तो देखेंगे कि कहाँ पर हुआ है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. For cricket lovers, David Warner has created a record by scoring 6,000 runs in IPL. He has become the fastest to score 6,000 runs in the Indian Premier League. Next, Government of India has launched Vibrant Village program. Vibrant Village program in Kibithu. Kibithu is a very important place from India's geographical perspective. Kibithu is the easternmost point of India in the state of Arunachal Pradesh. यहाँ से Vibrant Village program launch किया गया है. देखेंगे इस program में क्या है. Then Indian Constitution का डोगरी version launch किया गया है. Indian Constitution जिससे पूरे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन रन होती है, उसी में 8th शेड्यूल में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस प्रिस्क्राइब्ड हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि उन 22 लैंग्वेजेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए. अब तक बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो चुकी है. सो नेक्स्ट ऑन दैट इज डोगरी, विच इज अ लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट. तो इसमें भी अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च कर दिया गया है. नेक्स्ट, ज्योतिराव गोविंदराव Phule, a prominent socio-religious reformer of India in the 19th century. His 196th birth anniversary has been celebrated by the Government of India. Next, Tulsi Ghat Restoration Project has been launched
in Uganda, which is in Africa. Tulsi Ghat Restoration Project, and it has been launched by none other than the External Affairs Minister of India, Mr. S. Jaishankar. तो देखेंगे इस मिशन, इस प्रोजेक्ट की क्या स्पेशलाइजेशन है. Next, China records world's first human death from H3N8 bird flu. H3N8 bird flu, right? A new type of flu, bird flu. इससे दुनिया की पहली ह्यूमन डेथ हुई है. तो देखेंगे इसके बारे में थोड़े से साइंटिफिक फैक्ट्स. Next, India's first 3D printed post office to come up in Bengaluru, taking leaps in new types of technology. There are a lot many buildings in other parts of the world which have been constructed using 3D printing. So now in India also, the first 3D printed post office is going to come up in Bengaluru. Rightly so, because Bengaluru is considered to be the Silicon Valley of India, the hub of information technology and new types of technologies as well. Next, India's first semi-high-speed regional rail service, RapidX, is going to be launched very soon. National Capital Region NCR में बहुत जल्दी इंडिया की पहली semi-high-speed regional rail service launch हो रही है, I think between Delhi and Meerut, and the name has been given RapidX. Kolkata Metro has become the first metro in India to run below a river, to run under a river. So a tunnel has been constructed under the Hooghly River to facilitate the movement of the train from one part to the other part of the city. And finally, a new GI tag has been conferred, that is on Madhya Pradesh's Gond painting. So let's take a look at all these topics one by one. First, India Bangladesh Japan connectivity meet. तो इस मीट में बेसिकली क्या हुआ है, पहले तो it has been held in Tripura. So the venue of the meeting was Tripura, right? Secondly, ये किसने organize की है? The Asian Confluence, which is a think tank from the Northeast, and in consonance with the Ministry of External Affairs, Government of India. So Ministry of External Affairs and the Asian Confluence think tank had organized this connectivity meet. So why would a think tank from Northeast take such an initiative? Because it is going to be of a lot of benefit to the northeastern states. इसका मेजर पर्पस ये है कि अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के मैप को ध्यान से देखें तो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बहुत ही नैरो स्ट्रेच के थ्रू जाती है, विच इज कॉल्ड द चिकन नेक कॉरिडोर एज वेल, राइट? तो चुंबी वैली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू बहुत ही एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड है, विच एट इट्स नैरोएस्ट इज 27 किलोमीटर्स, जस्ट 27 किलोमीटर्स. तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट से हमारी जो भी कनेक्टिविटी है वो सारी उस नैरो स्ट्रेच के थ्रू होती है. इवन नॉर्थ ईस्ट की जो दूर वाली स्टेट्स हैं जैसे कि मिजोरम या त्रिपुरा, उसके लिए भी हमें पूरा घूम कर जाना पड़ता है थ्रू असम एंड मेघालय. लेकिन अगर बांग्लादेश के थ्रू हम कुछ चीज़ों की कनेक्टिविटी कर पाएँ, ऑल्दो देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू वीज़ा एंड रिलेटेड टू डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, लेकिन अगर हम बांग्लादेश के थ्रू चीज़ें भेजनी शुरू करें जैसे कि कार्गो के लिए या इवन पैसेंजर ट्रैफिक के लिए, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट मोर बेनिफिशियल. तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की ताकि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की जा सके बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश, एटलीस्ट फॉर गुड्स, ताकि बिकॉज गुड्स में ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत मैटर करती है, टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस एंड नैरो द डेवलपमेंट गैप्स इन द रीजन. सो दैट इज वाई ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन. एंड उससे भी अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में पोर्ट्स हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू डू इट फ्रॉम अ बांग्लादेशी पोर्ट rather than to do it from the Kolkata port. So this meeting suggested that these work together, and for the transit of goods from the northeast region of India to the Chattogram port and bringing synergy in trade facilitation. Chattogram port जो है ये बांग्लादेश में है, तो उसके थ्रू जो ट्रेड हो पाए नॉर्थ ईस्ट में, इसकी कोशिश इस मीटिंग में की गई. Other than that, they also recommended creating industry value chains and establishing a Japan Northeast India Chamber of Commerce. A Japan Northeast India Chamber of Commerce. So because Japan is also interested in this region,
to promote Japanese investment in the Northeast India and a Northeast India Bangladesh Japan CEO forum. ये दोनों को बनाने का प्रपोजल है ताकि नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके. सो दिस इज अ रियली गुड इनिशिएटिव वेयर ऑल दीज थ्री कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर and the idea is to promote trade, to promote economic integration. That is why this meeting was held. आगे चलते हैं. So Mr. C.R. Rao has won the International Prize in Statistics 2023. ये प्राइज बहुत पुराना प्राइज नहीं है, रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड प्राइज है. 2016 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज प्रेजेंटेड वंस एवरी 2 years. हर 2 साल में एक बार दिया जाता है, यानी कि अब तक ये प्राइज 4 या 5 बार ही दिया गया है. और ये उसे दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को या टीम को विच हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर थ्रू स्टैटिस्टिक्स. So through the use of statistics, because statistics means you are bringing objectivity into something. तो अगर स्टैटिस्टिक्स को यूज करके किसी ने भी साइंस, टेक्नोलॉजी या ह्यूमन वेलफेयर में कोई अच्छा काम किया हो तो उसे ये प्राइज दिया जाता है. $80,000 कैश कैरी करता है ये. और ये कहाँ पे दिया जाता है? इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस इन ऑटवा, कनाडा. ऑटवा विच इज द कैपिटल ऑफ कनाडा. वहां पर इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है जिसमें कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स कांग्रेस होती है, वहां पर यह अवार्ड दिया जाता है. So his full name is Kalyapudi Radhakrishna Rao. He was born in Karnataka, but he does not live in India anymore. He has moved to America, so he's considered an Indian American now. And right now he is a professor in the statistics department at the Pennsylvania State University. US की Pennsylvania State University में वो अभी statistics के professor हैं. इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. राइट. तो महालनोबिस एक बहुत मेजर बड़े स्टैटिस्टिशियन रहे हैं इंडिया के. सो ही अलोंग विद मिस्टर महालनोबिस अलोंग विद मिस्टर C.R. Rao वर इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता. और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है. सो अ लॉट ऑफ feathers up his cap. Now it's another feather that he has won the highest award in statistics in the world. Next, Prime Minister Narendra Modi has launched the Big Cats Alliance to protect all the big cats at once, which include jaguar, puma, leopard, lion, tiger, cheetah and snow leopard. These are the 7 big cats belong to the cat family. And why has this initiative been taken? Because recently tiger census was conducted. India has shown improvement in tiger population because of those efforts. Recently 50 years of National Tiger Conservation Mission was या Project Tiger के 50 साल अभी complete हुए हैं. चीता को हमने अभी अभी relocate किया है कुछ महीने पहले from Namibia and from South Africa. So maybe the idea was to do a joint effort for all the species of the cat family. तो इसलिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च की गई है, IBCA. और इंडिया ने इसमें इनिशिएटिव लिया है, जस्ट लाइक आई थिंक द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑल्सो. तो इन 7 स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशनिस्ट्स, कंट्रीज और एक्सपर्ट्स को एक साथ लाया जाएगा. कौन सी वो कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिग कैट पॉपुलेशन मिलती है? जैसे कि एक तो इंडिया ही है, of course, that is why India has taken this initiative. Other than that, Indonesia, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका. जैसे अगर हम चीता पॉपुलेशन की बात करें तो चीता सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका, नमीबिया और बोत्सवाना में मिलते हैं. इसके अलावा अगर एशियाटिक चीता की बात करें तो ईरान में मिलते हैं. Then if we talk about other species, then Indonesia, Brazil, etc. have these species. Nepal also has significant tiger population, and Nepal has become the first country to join this International Big Cats Alliance. So many other countries are expected to join. The idea is to synergize all the efforts towards protecting all these big cat species because they are the keystone species when we talk about ecosystem. वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम. तो ये सारी की स्टोन स्पीशीज हैं. सो दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग एन एंटायर फूड चेन.
तो इसलिए इनका प्रोटेक्ट करना इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। World Vaccine Congress was held in Washington DC, USA. वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, तो यहाँ पर इंडिया की जो कंपनी है भारत बायोटेक, इट वाज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड, बेस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड। भारत बायोटेक हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड इंडिया की एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड इसने दुनिया की सबसे पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन discover की थी। We have discussed this in a previous video and the name of that vaccine was Incovac. Incovac means intranasal COVID vaccine. Incovac this is the world's first intranasal COVID vaccine और इसलिए इन्होंने ही कोवैक्सीन भी बनाई थी जो कि बहुत सारे इंडियंस को लगाई गई। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही दो मेजर वैक्सीन हैं जो ज़्यादातर इंडियंस को एडमिनिस्टर की गई, तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, भारत बायोटेक। India has given $2 million to African Union Transition Mission in Somalia, ATMIS, African Union Transition Mission in Somalia, right? तो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में रुचिरा कंबोज, उन्होंने इंडिया की कमिटमेंट को रीअफर्म किया दैट वी आर कमिटेड टू ब्रिंगिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन सोमालिया। तो ये एक फंड बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड जो इस तरह की कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में फंडिंग प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बेसिकली ये मिशन क्यों बना हुआ है ATMIS? इसका रीजन ये है, पहली बात तो ये 1 अप्रैल 2022 को बना था ये मिशन, यानी कि लास्ट ईयर। तो ATMIS वाज बिल्ड थ्रू UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2628 और इसका पर्पस है to support the implementation of Somali transition plan. Somalia में basically there is a militant group which is called the Al-Shabaab group. Al-Shabaab group. तो इसका पर्पस क्या है मिशन का? To create a secure environment in Somalia and to contain terrorism by the Al-Shabaab group. So इसलिए मिशन बना हुआ है and India is committed to generating peace and maintaining peace in the region. तो उसके लिए हमने monetary contribution दी है। Next, world's first Asian king vulture conservation and breeding center has just opened in उत्तर प्रदेश। सेंटर का नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, JCBC. So this is the Asian king vulture, in Hindi known as Jatayu. So Jatayu conservation and breeding center and इसके लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से भी कोलैबोरेट किया गया जो कि एक बहुत वेल नोन NGO है जो इस डायरेक्शन में काम करता है। एंड इट इज़ दिस एशियन किंग वल्चर इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जिसके लिए कोड यूज़ किया जाता है CE, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द IUCN रेड लिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट सिंस 2007। किस वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? डाइक्लोफेनाक यूज करने की वजह से। डाइक्लोफेनाक इज और वाज अ सॉल्ट व्हिच वाज यूज्ड टू ट्रीट कैटल, एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स की तरफ से ये यूज किया जाता था। और जब उन एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो जब उन पे वल्चर्स उनको खाते हैं तो डाइक्लोफेनाक इनके भी सिस्टम में चला जाता है और इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डाइक्लोफेनाक को बैन कर दिया गया था। The veterinary use of diclofenac has been banned in India and the JCBC aims to raise at least 40 vultures in captivity over 15 years. Vultures जो हैं इस वजह से खत्म हो रहे हैं because डाइक्लोफेनाक इनके सिस्टम में चला जाता है and they die because of डाइक्लोफेनाक poisoning. तो अब इनका पर्पस इस सेंटर का है कि 40 वल्चर्स को हमें ब्रीड करना है ताकि इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस से बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा महोत्सव आसाम में लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो हेयर यू कैन सी मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल leading this particular international yoga mahotsav, and this is
sort of a countdown to 21st of June, which is the International Day of Yoga. तो ये बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ है और आज से इस दिन से करीब 100 दिन बाद, आई थिंक no, not even 100 days, okay, 75 days, yes, so 75 days बाद International Yoga Day है. So it is in a sort of a countdown to that day. 2014 में इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ने, जिसे डिक्लेयर करने के लिए 175 मेंबर स्टेट्स रेडी थी, विच इज अ हिस्टोरिक मैंडेट. सो आउट ऑफ 193 मेंबर्स ऑफ यूएन, 175 unanimously agreed to make 21st of June as International Yoga Day. आगे चलते हैं. David Warner has become the fastest cricketer to score 6,000 runs in Indian Premier League. इससे पहले अगर इस रिकॉर्ड के आसपास किसी की बात करें तो सबसे पहले तो डेविड वार्नर जो है ये दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन हैं, दिल्ली कैपिटल्स टीम के कैप्टन हैं, एंड ही इज नाउ द थर्ड प्लेयर टू अचीव दिस फीट आफ्टर विराट कोहली फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड शिखर धवन फ्रॉम पंजाब किंग्स, राइट. तो अब ये थर्ड फास्टेस्ट या इनफैक्ट फास्टेस्ट बन गए हैं टू स्कोर 6,000 रन. लेकिन ये पहले नहीं है जिन्होंने 6,000 रन स्कोर किए हो. सो फर्स्ट वाज विराट कोहली, सेकंड वाज शिखर धवन, बट ही इज द फास्टेस्ट. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसका मेजरली पर्पस जैसा कि नाम से पता चलता है, टू मेक विलेजेस मोर वाइब्रेंट, टू डेवलप देम, to bring about overall development of rural areas and transform them into self-sufficient and prosperous communities. इस तरह का एक प्रोग्राम बहुत साल पहले APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रपोज किया था, which was known as पूरा, PURA, providing urban amenities in rural areas, PURA. So this is something of that kind. और इसीलिए इसे एक रिमोट विलेज में लॉन्च किया गया है, which is किबिथु. Kibithu is in Arunachal Pradesh and it is the easternmost point of India. It is the easternmost village of India and is considered as the gateway to the land of rising sun, Arunachal Pradesh. इस विलेज में बेसिक अमेनिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, रोड्स वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि यहाँ से वो ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सके. बहुत सारी चीज़ें होंगी, रोड्स, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सब कुछ इन विलेजेस में किया जाएगा. सो दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. द डोंगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिस्टर किरण रिजिजू, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल mentions 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस which can be used in India, और उनमें से एक डोगरी भी है, right? So by 92nd amendment to the constitution, 92nd amendment to the constitution, 4 languages were added to this schedule: Bodo, Dogri, Maithili and Santali. So one of them is Dogri, which is a language that is spoken in Jammu and Kashmir. It is one of the official languages of UT of Jammu and Kashmir, and it descended from Sanskrit, the language of the Vedas. तो ये संस्कृत से derived या descended language है, and जम्मू एंड कश्मीर के लोग इसे बोलते हैं, and it is one of the 22 official languages in the Indian Constitution. तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है कि एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सबसे मेन लॉ है इंडिया का, इट्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो इसे सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाया जाए. Now 196th birth anniversary of ज्योतिराव गोविंदराव फुले. तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले या ज्योतिबा फुले एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे, एंड इनकी ज्योतिराव फुले जयंती मनाई जाती है 11th अप्रैल को, because he was born on April 11th, 1827, and Government of India is looking forward to celebrating his 200th birth anniversary in 2027. तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, एंड ही फॉर्म्ड
सत्यशोधक समाज, very importantly, सत्यशोधक समाज was the society that he founded, which advocated for the education of women and lower caste and fought against the oppressive caste system. दो मेजर चीजें जिनके लिए इन्होंने फाइट की अपनी पूरी लाइफ, एक कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए और एक विमेन्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए. So Jyotirao Phule and his wife Savitribai Phule, both of them were instrumental in promoting these two causes. Caste system को खत्म करना और women's education को promote करना. He coined the Marathi word Dalit. Dalit word इन्होंने coin किया था 1880s में to refer to the untouchables and outcasts. और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने मिलके इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल खोला था पुणे में. इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल which was a 1848 में खोला था, which was a revolutionary step towards women's education in India. In fact इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है महाराष्ट्र में, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, राइट. तो सत्यशोधक समाज जिसका मतलब है सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, और इसके अलावा ये एक स्कूल पुणे में, एंड देन हिज कॉजेज दैट ही फॉट फॉर. ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. एस जयशंकर लॉन्चेस तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन युगांडा. तो युगांडा में अपनी विजिट के दौरान इन्होंने तुलसी घाट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया. ही कमेंडेड द ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी युगांडा. ये इस तरह की सोसाइटीज बनी होती हैं. युगांडा के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्टार मार्क, युगांडा हैज बीन सिलेक्टेड टू चेयर द नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर द पीरियड 2022 टू 25. 2022 से 25 वाला जो पीरियड है उसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट जो कि एक मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी चेयर जो है वो युगांडा है. एंड युगांडाज कैपिटल इज कंपाला. सो अफ्रीका के बिहाफ पे युगांडा इज द चेयर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इसलिए एस जयशंकर वहां पर विजिट पे हैं. 3-3 साल के लिए इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है. एंड ऑन दिस ओकेजन the External Affairs Minister has inaugurated this project. China has recorded world's first human death from H3N8 bird flu. H3N8 is a scientific classification जिसमें H का मतलब होता है hemagglutinin and N का मतलब होता है neuraminidase. So H3N8, basically the combination of H and N can create different types of viruses. तो H3N8 एक नया बर्ड फ्लू है जिससे कि चाइना में पहली बार किसी की डेथ हुई है. So वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया है कि a woman from Guangdong in China has died because of this particular virus. It's a subtype of influenza A virus जिससे कि उस वुमन की डेथ हुई है. हालांकि बर्ड फ्लू प्राइमरीली बर्ड्स को ही इफेक्ट करता है, particularly wild waterfowl and shorebirds. It is not commonly found in humans, but rare cases of human infection have been reported. Rare है ये केस होना, लेकिन of course possibility तो है. It's not impossible. Symptoms are similar to other types of flu, जैसे कि fever, cough and all these things. The major concern it can become if human to human infection starts to happen. लेकिन अभी तक ऐसा कोई evidence नहीं है. No evidence of human to human transmission of H3N8 as of now. So scientists are keeping a close eye on whether this is a possibility or if any such case shows up. So for now, fingers are crossed. After COVID-19, every virus will look at with a certain sense of unpredictability. Next, India's first 3D printed post office is set to come up in Bengaluru. Bengaluru में पहला 3D printed post office. So 3D printing is a new form of technology in which even building construction material is put into the printer and 3D printing के through वो generate होता है. So no human element is basically allowed required. जैसे ये इस image में आप देख सकते हैं. So this is a printer which is sort of printing this building जिसमें कि सारा कुछ feed कर दिया जाता है. तो वो the cement mixture is being piled up one over the other जिससे कि walls create हो जाती हैं and the building is thus created. ये इंडिया की पहली 3D printed post office building होगी.
right? And it has achieved clearance from the Building Materials and Technology Promotion Council, BMTP Council, which is under the Ministry of Housing and Urban Affairs. और IIT मद्रास भी इसमें अपनी टेक्निकल नो हाउ दे रहा है. This can be the future of building construction in India. India's first semi-high-speed rail service RapidX has been named. इसको RapidX नाम दिया गया है. Right? A student is asking general test कहाँ से prepare करें? You can visit the Hitbullseye website or you can visit cuet.hitbullseye.com. वहाँ पे आपको इसकी सारी information मिल जाएगी. cuet.hitbullseye.com. अगर आप CUET का जनरल टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जस्ट विजिट cuet.hitbullseye.com and all your needs will be taken care of. All the things you will find over there. Right? तो इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल सर्विस जो कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में लॉन्च की जा रही है. इट विल बी लॉन्च्ड बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ फॉर द फर्स्ट. तो इसका नाम जो है वो रैपिड एक्स रखा गया है. ये ट्रेन्स रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि दिल्ली से जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उसके आसपास जैसे कि गाजियाबाद, मेरठ, गुड़गांव, पानीपत, यहाँ तक ये रीजनल रैपिड सिस्टम चलाया जाएगा ताकि क्राउड को कम किया जा सके. To link important urban nodes across the national capital region, जिसमें कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी इन्वॉल्व हैं. तो इसके लिए बनाई गई है NCRTC, which is National Capital Region Transport Corporation. Right? तो शुरू में ये अभी मेरठ तक शुरू की जा रही है and then more cities will be added. इसका नाम रैपिड एक्स रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए. Kolkata Metro first to run under river. So as you can see this tunnel has been constructed और इसमें पहली बार कोलकाता मेट्रो जो है वो चली है. and this is the map of कोलकाता जिसमें कि ये हुगली रिवर है. तो हुगली रिवर के नीचे से ये टनल जा रही है. So this has created a first of its kind in India where a metro train or any train for that matter is running below a water body. कुछ फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हो चुका है जहाँ पे सी या इवन ओशन के स्ट्रेच के नीचे से भी जो ट्रेन्स हैं वो रन करती हैं. लेकिन इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि वाटर बॉडी के नीचे से ये ट्रेन चलाई गई हो. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. हो सकता है यहाँ पे ओवरब्रिज बनाने की फिजिबिलिटी ना हो या ड्यू टू सम अदर रीजन. बट मे बी ऑन द बोथ साइड्स अंडरग्राउंड मेट्रो इज ऑलरेडी देयर. तो इनको कनेक्ट करने के लिए टनल बनाना ही ज़्यादा फिजिबल था. But it is highly challenging if we think from the engineering perspective. So that has been achieved and this is now the deepest metro station in the country, which is of course 33 meters below the surface. So that's an engineering marvel in itself. And finally, the last news of this week, Madhya Pradesh's Gond painting has got the geographical indication tag. तो GI टैग किसी भी ऐसे फूड प्रोडक्ट या अपैरल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता हो, जस्ट टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अब ये मध्य प्रदेश की गॉन्ड पेंटिंग्स को दिया गया है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द गॉन्ड पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश विच इज रियली इंट्रिकेट एंड वेरी डिफिकल्ट टू पेंट. तो एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट ही इसको पेंट कर सकते हैं. तो इसको GI टैग दिया गया है जिससे कि टू सेफगार्ड एंड एक्नॉलेज द वर्क ऑफ ट्राइबल आर्टिस्ट्स एंड रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम अ कमिटी ऑफ नॉन ट्राइबल आर्टिस्ट टू यूज द आर्ट. यानी कि अब सिर्फ ट्राइबल सर्टिफाइड आर्टिस्ट ही ये पेंटिंग बना पाएंगे और उसको बेच पाएंगे. हर कोई इसको नहीं बेच पाएगा. दैट मीन्स इट विल हेल्प दोज ट्राइबल आर्टिस्ट्स बिकॉज दे विल गेट अ फेयर प्राइस फॉर देयर आर्ट. Right, so there is a village called Patangad village in Dindori district of Madhya Pradesh, in which every household has an artist and their artwork is not only popular in the state but also internationally recognized. तो वहाँ के tribal artists को इससे बहुत फायदा होगा. Right, so Gond is a famous tribe of India which has this particular art. That is it for this video.
If you like the video, please give it a thumbs up and also share it with your friends so that they can benefit from the same. Thank you so much and take care.